ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 30 ಬೆಡ್ಡಿನ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲು. ಇದರಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಮೆಡಿಸನ್ ಇದೆ, OBG ಮ್ಯಾಲಿಟಿಕ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಥರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಹಾಗೂ ಕೋವಿಡ್-19ಗೆ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇವಲ್ಲಿ ತಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಗಳಾಗಿದೆ. ಆ ಥರ ಆಗಬಾರ್ದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3rd ವೇವ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ, WHO ಇಂದ. ಅದು ಆ ಥರ ಆಗಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಜನಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡೋಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೂ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವರನ್ನು ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಇಷ್ಟೇ, ಯಾರು ಬಡವರು ಇದ್ದಾರೋ ಅಂಥವ್ರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ತಮ್ಮ ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ BBMP ಕಡೆಯಿಂದಾಗಲಿ ಸರ್ಕಾರ ವತಿಯಿಂದಾಗಲಿ ನಾವು ಖಂಡಿತ ಏನೇ ಸಹಕಾರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇದ್ದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಜನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಬೇಕು, ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನತೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಬೇಕು, ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 3ನೇ ಅಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ 75 ಬೆಡ್ಡಿನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ 2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 2 ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲುಗಳು, ಒಂದು ಸರ್ವಜ್ಞ ನಗರ್ಗೆ, ಒಂದು ನಮಗೆ ಪುಲಕೇಶ್ ನಗರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 80 ಬೆಡ್ಡಿಂದು ಒಂದು ಈದ್ಗಾ ಶಾದಿ ಮಾಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಆ ಥರ ಇನ್ನೂ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡೋಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ. सबसे पहले मुबारकबाद देता हूँ एस्पायर हॉस्पिटल को और उन नौजवानों को और बुज़ुर्गों को जिसने सोचा ऐसा कुछ काम करने के लिए, क्योंकि आज की माहौल बहुत ख़राब है. अभी हमें सुने हमारे हजरत कैसे बता रहे थे, बिल ज़्यादा बनाते, बिल्कुल ज़रूरत नहीं तो भी ऑपरेशन कर दिए, तो सच बात है, कड़वी है लेकिन सच भी है. लेकिन हमारे नौजवान उसका खिलाफ जंग लड़ने के लिए इसी को तो स्टार्ट किया है. अभी ऐसा नहीं होना चाहिए, लोगों को तकलीफ़ नहीं होना है, लोगों को मदद करना है, जिसको ज़रूरत है उसको ट्रीटमेंट मिले. तो इंशाल्लाह अच्छी नीयत है तो 100% सक्सेसफुल होगा. और बहुत छोटा फैसिलिटी है, इसे हमें भी समझना चाहिए, क्योंकि 30 बेडेड है तो 300 लोग आ गया तो इनको अफोर्ड दे कांट टेक केयर. तो वी शुड अंडरस्टैंड. इंशाल्लाह आगे चलकर कम्युनिटी एंड NGOs, there's already an NGO working along with them, there are doctors working. So inshallah let them start. Let us pray for their success so that many more hospitals like this can open. There could be many more units coming up like this, which will be useful to people who can spend money, who cannot spend money. Both it should take care of both of them. There are people who can spend, they don't get good treatment. There are people who can't spend, they don't get good treatment. So it should take care of both of them, inshallah. I wish all the best to you and good grand success for this project, because I know this was earlier started for something else and you have taken over. Inshallah Allah इसको आपको मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह आपको कामयाब बनाए और इससे लोगों को फ़ायदा हो. यहाँ पर एक और पहलू भी आता है, क्योंकि जाहिर सी बात है मेडिकल लाइन में कॉम्पिटिटर्स ज़्यादा हैं और सबसे सस्ती कीमत पर अगर यहाँ रहेंगे तो कहीं ना कहीं जो है ना कॉम्पिटिटर इदारे को कहें, अस्पताल को कहें, इस तरह का भी अगर माहौल पैदा होगा तो उसको ये सिचुएशन में अगर ऐसा होगा तो इन लोगों को क्या करना चाहिए या क्या? एस्पायर हॉस्पिटल वाले बहुत ताकत रखे हैं भाई, नहीं तो एक ओपन करना ही नहीं होता उनसे. तो आप ये सब तो उनको सिखाने का ज़रूरत नहीं है. कॉम्पिटिशन वर्ल्ड में हम है. अब इधर बैठने को कुर्सी मिलना तो भी कंपटीशन है, तो किस तरीके से बैठना उठना ये सब कोई किसी को सिखाता है क्या? उनको मालूम है, दे नो व्हाट दे आर डूइंग. तो इंशाल्लाह मतलब क्लिनिक, शिफा खाना, वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, ये सब जो है इंसानी खिदमत का बहुत ही अहम और बहुत ही मकबूल तरीन, दुनिया के एतबार से भी, और हम चूँकि मुसलमान हैं तो हमारी निगाह में आखिरत भी हर वक्त रहनी चाहिए. दुनिया और आखिरत दोनों के एतबार से बहुत ही कारआमद काम है. ऐसा प्लेटफॉर्म है कि इस प्लेटफॉर्म से, इस खिदमत से आदमी दुनिया में भी नेक नामी कमाता है और आखिरत में भी उसके लिए नेकियों का ज़ख़ीरा जो है मुतय्यन होता है. और रहमानिर्रहीम, जैसा डॉक्टर अफजल क़ासमी साहब ने फरमाया कि तिब्बी पेशा खिदमत खल्क़ का पेशा है. जैसे एक आलिम अपनी ज़िम्मेदारी अदा करता है, उसी तरह डॉक्टर भी अपनी ज़िम्मेदारी अदा करता है. तो इससे इंसानियत की बक़ा है, क्योंकि आजकल
हर पेशा कमर्शियल पेशा होता जा रहा है, जिसकी वजह से डॉक्टरों की शबीह भी बहुत ख़राब हो रही है और दूसरे पेशे भी बहुत ज़्यादा, जबकि एक एजुकेशन का जो शोबा होता है वो बहुत अहम शोबा होता है, वहाँ भी लाखों करोड़ों रुपयों की फ़ीस होने की वजह से गरीब बच्चों के लिए पढ़ना बड़ा मुश्किल हो रहा है। ऐसे में बाज़ ऐसे हॉस्पिटल्स जो एक नमूना बने, एक मिसाल बने हमारे शहर के लिए भी और हमारी इस रियासत के लिए भी और हमारे इस मुल्क के लिए भी। जब आसपाइर के ज़िम्मेदारों से मेरी गुफ्तगू हुई तो मैंने उनके सामने यही बात रखना चाहा कि हॉस्पिटल खिदमत खल्क के जज्बे को सामने रखते हुए ओपन करना चाहिए, न कि सिर्फ जो भी आए अब उसको ऑपरेशन के ज़रिए फ़ीस बढ़ाने की कोशिश की जाए, या यह है कि दूसरा टेस्ट लिख के इतनी बिल बढ़ा दी जाए कि अब पेशेंट वो सारी बिल देना मुश्किल उसके लिए खड़ी हो जाए। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे डॉक्टर अफजल कासमी साहब के फर्जंद हों, दामाद हों, और हमारे इस्लामिक इंफॉर्मेशन जो सेंटर है उसके ज़िम्मेदार हों, ये सब मिलकर एक अच्छे मकसद के लिए इन्होंने ओपन किया है। जो कोई भी मरीज़ आए उसका सही सबसे पहले तशख़ीस किया जाए कि उसकी क्या बीमारी है, उसका क्या इलाज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो भी बकरा आए उसको ज़बह कर दिया जाए, ये बकरा नहीं है, एक इंसान है, इंसान की जान बड़ी अहमियत की हामिल है। इसलिए मैं हमारे इन डॉक्टरों से भी गुजारिश करना चाहूँगा कि आप एक ऐसी मिसाल कायम कर दें पूरी इंसानियत के लिए, पूरे मुल्क के लिए और पूरे आलम के लिए कि जी हाँ, डॉक्टर्स भी ऐसी खिदमत अंजाम दे सकते हैं। चूँकि ये जो भी आए उसको कमर्शियल तरीके से लूटने की जो कोशिश हो रही है वो ख़त्म होनी चाहिए। उसके लिए मैं उम्मीद करता हूँ कि सबसे पहले ईंट आसपाइर के ज़रिए रखा जाएगा। ये कोविड का ज़माना है, यहाँ हॉस्पिटल की बड़ी सख्त ज़रूरत पेश आ रही है। लोगों को हमने देखा कि अपने बीमारों को कभी टू व्हीलर पे तो कभी ऑटो पे तो कभी कारों में लेकर एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल की यानी उनकी फिरना हो रहा था। तो ऐसे में ये हॉस्पिटल इंशाअल्लाह एक संगमैल का मकाम रखकर एक मिसाल कायम करके लोगों के सामने पेश करके बताएगा कि ऐसी खिदमत भी हो सकती है जहां बेहतरीन इलाज भी हो रहा हो, और कभी कभार ऐसा गरीब भी आ जाए जिसकी ज़रूरत हो तो इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर के ज़रिए से भी पूरा किया जाए। या हमारे हारिस भाई साहिब हों, जब यतीम खाने में एक शोबा कायम करने के सिलसिले में वहाँ इरादा किया गया तो माशाअल्लाह मैंने खुद आपको देखा कि पूरे जज्बे के साथ 50 लाख रुपये अगर यहाँ कायम होता है तो आपने देने का वादा किया, लेकिन हमारी कौम ने उसका इस्तेमाल ही नहीं किया। क्या करें कि बस ऐसे वैसे कामों में हमने उस वक्त इंसानियत को मुश्किल में डाल दिया। ऐसा जज्बा रखने वाले, चूँकि आप भी सेहत की बड़ी फ़िक्र रखते हैं और हमारे वो अहबाब जिनके लिए सेहत की परेशानी है तो उनकी भी आपको बड़ी फ़िक्र रहती है, तो इस वजह से आपने बढ़ चढ़ कर वहाँ हिस्सा लिया और लोगों के सामने पेश किया। लेकिन वहाँ यतीम खाने के अंदर ना ऑक्सीजन सेंटर बना, ना कोई और सेंटर बना, दूसरी चीज़ों के हवाले हो गए, जिसकी वजह से वो काम नहीं हो सका। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में डॉक्टरों की टीम और हमारे सियासी कायदीन की टीम और इसी तरह दानिशमंदों की टीम और उलमा की टीम, ये सब मिलकर एक ऐसा कारनामा अंजाम दें कि अब यहाँ बिजनेस नहीं होना चाहिए, खिदमत होना चाहिए। हाँ, इसकी ज़रूरतें हैं, उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो ज़रूरी फ़ीस होती है, ऐसा नहीं है कि गैर ज़रूरी ऑपरेशन करके पैसे लूटने की कोशिश हो, ये हरगिज़ नहीं होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि हमारे डॉक्टर्स से मेरी इस बातों को शायद कड़वी ही सही, लेकिन आपने इसको कबूल किया हुआ होगा, लेकिन हक़ पर मबनी है। उम्मीद के इसकी तरफ तवज्जो फरमाएंगे। शुरू ही से इस आसपायर का मकसद ही यही है कि जो दूसरे कमर्शियल हॉस्पिटल जिस तरह से काम कर रहे हैं उसके बगैर यहाँ एक नमूने के तौर पर हम काम करें। हम उम्मीद करते हैं कि ये अपने मकसद में कामयाब व कामरान होंगे। ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ನುಯೇಬ್ ಖಾನು ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಮೀಲ್ ಅವರು, ಇವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೈಯದ್ ಅವರು, ಎಲ್ಲ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಸೇರಿ ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೌನ್ನಲ್ಲಿ
ಇವತ್ತು ಈ 30 ಬೆಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ನಾವಿವತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಉದ್ದೇಶ, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಇಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ಸು, ಇವರೆಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ಇಷ್ಟೇ. ವೈದ್ಯಾದಾನ ವಿದ್ಯಾದಾನ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮಹಾ ದೊಡ್ಡ ದಾನಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ದಾನಗಳು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದು ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ. ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಎರಡು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಕೂಡ. ಇಂಥ ಒಂದು ಕೋವಿಡ್-19 ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕೋವಿಡ್-19 ಎಂಬ ಈ ಮಹಾಮಾರಿ ರೋಗ ಇವತ್ತು ಜನರಲ್ಲಿ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಇವತ್ತು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದಿಗ್ಧ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಇಂಥ ಒಂದು ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಆಸ್ಪೈ ಒಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಲಿ. ನಾನು ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬಡವರಿಗೆ, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಕೆಳವರ್ಗ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದಂಥ ಬಡವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೇವೆ, ಒಂದು ಸವಲತ್ತುಗಳು ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇದಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಹಾರೈಸಿ ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ. Hospital. We are happy to announce the launch of Aspire Hospital in Fraser Town, Bangalore, and it's an initiative from Islamic Information Center and a group of members. We have started this hospital. It's a 30-bedded hospital, and we will work during COVID and non-COVID times as well. It's a multi-speciality hospital. We have a team of doctors. We have different specialities. So we hope to serve the society by giving the best of services, and if we have people from the lower section of the society as well, we will treat them at a lesser cost, whatever they can afford. We will see what best we can do from our end with this intention, and also provide the best of services. So Aspire Hospital has launched, so today is the first day, and the services will start from tomorrow. We have a team of doctors from different services, so all will be working here on different timings and different days. So we have teamed up with them. We have a beautiful team. We hope to serve the society and give the best. Sir, what is the difference between different hospitals and this hospital? What is the difference? See, all hospitals work in tandem. We all work together. The difference, we can say that the same service, whatever a person who can afford, for example, we have a treatment of ₹1,00,000. The same treatment will be given for a lesser cost, say 50,000 or 60,000, depending on the patient's capability. And we as NGOs, we have a team of NGOs. We all will pull in and we'll see what best we can do. The services will remain the same. It will be the same state of the art. With that, we will see to it that even the poor gets the good facility. So what is it? What पर्टिकुलर डॉक्टर जो है उसके ऊपर जो है लोगों का इस्तेमाल होता है, अगर वो डॉक्टर यहाँ अवेलेबल नहीं है या इस तरह की सिचुएशन हो तो उसको किस तरह हैंडल किया जाए? अगर उनको किसी डॉक्टर पर एतमाद है, अगर वो हमारे से नहीं है, पहले ही हमारी कोशिश रहेगी कि उनको यहाँ पर लाए, उनसे बात करें. अगर वो बिजी है, किसी सूरत हाल में यहाँ नहीं आ सकते, तो हम जरूर उस पेशेंट को वो जहाँ कहीं भी है उनसे राब्ता करके उनको वहां तक पहुंचाएंगे, ताकि पेशेंट को अगर इत्मीनान हो और सही ट्रीटमेंट हो. ये मकसद है. ऐसा नहीं है कि वो यहीं पे आना है, यहीं पे ट्रीटमेंट करना है, ऐसा नहीं होगा. डॉक्टर जहाँ भी रहे, पेशेंट को हम देखेंगे, अगर उनसे वहाँ फायदा हो रहा है तो वो उनको वहाँ पहुंचाएंगे. सर कौन कौन से मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं सर आप एस्पायर हॉस्पिटल? यहाँ पर जो है हमारे पास जनरल मेडिसिन है, ओबीजी है, पीडियाट्रिक्स है, सर्जरी है, ईएनटी है. देखिए हर स्पेशलिटीज है यहाँ पर, और स्पेशलिस्ट भी अवेलेबल हैं. अभी हमको शुरू करना है, देखेंगे फुटफॉल कैसा रहेगा और हम आगे इसको कैसे लेके जाएंगे. हमारी टीम भी अल्हम्दुलिल्लाह, टीम में एक डॉक्टर है, एक बिजनेसमैन है, एक एनजीओ है, तो मिलकर जो है वी हैव अ विजन एंड वी होप to start a 100-bedded hospital with a medical college. With this intention, this is a stepping stone.
please pray to it that we have that 100-bedded hospital and we get a permission for a medical college. एक बात बताइए, 40-60% डिफरेंसेस रहेगा दूसरे अस्पताल से, तो वो अफोर्ड कहाँ से कर पाएंगे जो कमी रहेगी? उस सूरत हाल में जो है एनजीओ पूलिंग करेंगे, हमारा एनजीओ भी आएगा, दूसरे एनजीओ भी रहेंगे, एक पूल हुआ है, मर्सी मिशन भी इन्वॉल्व है, दूसरे एनजीओ हैं, तो इंशाल्लाह मिलकर जो है उसके ताउन करके पेशेंट की मदद करेंगे. इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर आपका पार्टनर है, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं. इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर 2010 में इसके एस्टैब्लिश हुए थे, तब से जो है मेडिकल एड कर रहे हैं, एजुकेशन एड कर रहे हैं, हमारा मेडिसिन बैंक है, कम्युनिटी फ्रिज है, हमारा लीगल एड सेल है, वी हैव अ मदरसा, वी हैव अ स्कूल एंड हॉस्पिटल इज वन सच इनिशिएटिव.